بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے کہ دواؤں کے بغیر شوگر کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو ایک دو ویڈیوز میں بتایا کہ شوگر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ٹائپ 1 اور ایک ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 شوگر کے اندر آپ کا پینکریاز جو ہے آٹو امیون ڈیزیز کی وجہ سے اس کے بیٹا سیلز مر جاتے ہیں، تو آپ انسولین پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ جب آپ انسولین پروڈیوس نہیں کر پاتے تو آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، تو آپ کو انسولین پہ جانا پڑتا ہے، انسولین کے ٹیکے لگاتے ہیں جس سے آپ کی شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ دوسری جو 90% لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، شوگر ہوتی ہے، وہ ہے ٹائپ 2۔ ٹائپ 2 جو ہوتی ہے یہ نارملی 30-40 سال کے بعد ہوتی ہے، اور اس میں آپ کے پینکریاز کے اندر جو بیٹا سیلز ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، ان میں کچھ پینکریاز کے اندر پرابلم آتی ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ پینکریاز پہ لوڈ ڈالتے ہیں کاربوہائیڈریٹ کھا کے۔ کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ شوگر ہے، روٹی چاول، یہ سب کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ تو جب آپ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں تو آپ کی پینکریاز کو بہت زیادہ انسولین ریلیز کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کی شوگر ہائی ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو یہ 8-10 سال چلتا رہتا ہے، اور پھر آپ کا پینکریاز تھک کے یا تو انسولین بنانا کم کر دیتا ہے یا پھر انسولین زیادہ بنانا شروع کر دیتا ہے، لیکن آپ کا جسم اس انسولین کو یوز نہیں کر پاتا، جس کو انسولین ریزسٹنس بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی میجر جو علامات ہیں کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے یا نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کا دیکھ لیں آپ اپنے جسم پہ فیٹس، اگر تو آپ کی ویسٹ پہ، کمر کے اوپر یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ والا، یہاں پہ اگر آپ فیٹس ہیں بہت زیادہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیور کے اوپر بھی فیٹس ہیں، تو وہ فیٹس بیسیکلی پینکریاز کے اندر انسولین پروڈکشن کو افیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انسولین ریزسٹنٹ ہیں، آپ کی انسولین پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن پھر بھی آپ کی شوگر ہائی ہے، آپ کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوا ہے، تو یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے۔ تو جو دواؤں کے بغیر آپ شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں وہ نارملی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے۔ ٹائپ 1 کے لیے آپ کو ہمیشہ انسولین لینی پڑے گی۔ ٹائپ 2 میں آپ دو قسمیں، یا تو آپ کی شوگر شروع میں ڈیٹیکٹ ہو گئی، 2-4 سال کے اندر اندر آپ کو پتہ چل گیا، اور یا آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوئے 10-20 سال ہو گئے ہیں، اور چونکہ جب آپ کی شوگر زیادہ رہتی بہت عرصہ، تو وہ الٹیمیٹلی وہ بھی آپ کے پینکریاز کے سیلز کو ڈیمیج کرتی ہے۔ لیکن اس کو چیک کرنے کے لیے سب سے جو بہتر طریقہ ہے کہ آپ دواؤں سے شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل جو ہے، اپنی خوراک، اس کو چینج کریں، اور اس کو چینج کرنے کے ساتھ آپ اپنی شوگر چیک کرتے رہیں۔ جو سٹرپس ہیں آج کل بہت سستی مل جاتی ہیں، اس سے شوگر چیک کرتے رہیں ہر کھانے کے بعد، اور دیکھیں گے آپ کی اگر 2-3-4 ہفتوں میں آپ کی شوگر لائف سٹائل چینج کرنے سے، کاربوہائیڈریٹ کرنے سے، کم کرنے سے شوگر اگر نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پینکریاز ابھی تک کام کر رہا ہے اور آپ کی شوگر دواؤں کے بغیر کنٹرول ہو سکتی ہے، آپ نارمل لائف گزار سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں کھانے میں ایسی ہیں جو آپ کی شوگر کو زیادہ کرتی ہیں۔ جب شوگر زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی پینکریاز کو شوگر انسولین بنانا زیادہ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسولین ریزسٹنس کوز ہوتی ہے۔ دوسری، آپ کو اپنے لیور کی جو چربی ہے، جو جگر کی چربی ہے، اس کو کم کرنا پڑے گا، جس سے آپ کی انسولین ریزسٹنس کم ہو جائے گی، انسولین سینسٹیویٹی بڑھ جائے گی، تو آپ کی شوگر بغیر دواؤں کے کنٹرول ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے 2-3 چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے تمہاری خوراک جو ہے، جو اس کی 3 بیسک، جس کو میکرو نیوٹرینٹس کہتے ہیں، وہ ہے پروٹین، فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس۔ پروٹین جو ہے وہ اسینشیل بلڈنگ بلاکس ہیں آپ کے جسم کے، پروٹین کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، یا آپ بہت زیادہ ویک ہو جائیں گے، بہت زیادہ بیماریاں لگیں گی۔ تو پروٹین جو ہے وہ ایک لازمی آپ کی ڈیلی غذا کا حصہ ہونا چاہیے۔ فیٹس بھی بہت ضروری ہے ہمارے جسم کے لیے، کیونکہ ہمارے سارے سیلز کی جو میمبرینز ہیں، ہمارا جو کولیسٹرول ہے، ہمارا جو ہارمونز ہیں، یہ سارے فیٹس سے بنتے ہیں۔ پھر ہمارے لیے فیٹس
हमें सेव रखते हैं। हमारे गुर्दे, जिगर, बहुत सारे अज़ा के ऊपर फैट्स की एक लेयर होती है जो कि बड़ी ज़रूरी है उनको सेव करने के लिए। तो फैट्स भी हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए, अच्छी सेहत के लिए फैट्स भी ज़रूरी हैं। लेकिन फैट्स में ये है कि अगर आप बिल्कुल फैट्स बंद कर देंगे तो फिर भी आप बीमार हो जाएंगे। अगर आप फैट्स बहुत ज़्यादा कर देंगे, मोर देन जो आपकी जिस्म की ज़रूरत है, तो वो भी आपके जिस्म के लिए ठीक नहीं है। इसलिए फैट्स आप खाएं, लेकिन जो फैट्स प्रोटीन के साथ आते हैं। आपको फैट फ्री दूध, फैट फ्री योगर्ट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फुल फैट खाएं, लेकिन जो योगर्ट के साथ आता है फैट, जो गोश्त के साथ फैट आता है, उसको करें। लेकिन आप अगर जैसे अभी ये एक ट्रेंड चला हुआ कीटो वाला कि आप अपनी कॉफ़ी और चाय में बटर डाल के पिएं और बुलेट प्रूफ कॉफ़ी, तो वो बहुत ज़्यादा फैट्स है, वो उतना फैट्स हमारे जिसम हैंडल नहीं कर सकता, तो फैट्स की भी ज़रूरत है। तीसरी चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मेनली आपकी शुगर को इंक्रीज करते हैं ब्लड में, जिसकी वजह से आपका पेंक्रियाज को इंसुलिन सिक्रीट करनी पड़ती है। तो कार्बोहाइड्रेट में एक तो प्योर शुगर्स हैं, सिंपल जो शुगर आपके केक, बिस्किट, मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, ये सारी जो है ना प्योर शुगर है। फिर आपके फ्रूट्स आ जाते हैं। फ्रूट जो है वो शुगर और फ्रुक्टोज दोनों का मिक्स है। तो फ्रुक्टोज और शुगर दोनों तकरीबन एक जैसा ही इफेक्ट करते हैं आपके जिस्म में शुगर को। फ्रुक्टोज थोड़ा कम करती है, लेकिन फ्रुक्टोज आपके जिगर में जाके मेटाबोलाइज होती है। तो वैसे ही आपको, क्योंकि मसला जिगर का है सारा, आपके पेंक्रियाज और जिगर का मसला है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में है, तो फ्रूट खाने से भी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं होगी। तो फिर भी आप शुगर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे बगैर अद्वियात के। तो ये एक किस्म के कार्बोहाइड्रेट हैं। दूसरी किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे आपके अनाज है, चावल हैं, दालें हैं, आलू। ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये शुगर नहीं होते खाने से पहले, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि थोड़े लॉन्ग चेन होती है शुगर की। लेकिन जब आप खाना इनको खाने में खाते हैं, जैसे रोटी है, चावल, आलू वगैरह, तो ये जब आपके मैदे में जाते हैं तो ये ब्रेक डाउन होके आधे घंटे के अंदर अंदर ये बिल्कुल शुगर बन जाती है। तो ये भी आपकी शुगर इंक्रीज करेगी। तो जो डॉक्टर हजरात आपको या कोई बंदा ये कहे जी कि शुगर वाले की शुगर रोटी से, चावल से ज़्यादा नहीं होती या उसको खाने का कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल गलत बात है। और इसके लिए आपको किसी साइंटिफिक लेबॉर्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो आप स्ट्रिप्स हैं, आप एक रोटी खा के 2 घंटे बाद अपनी शुगर चेक कर लें। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपके पेंक्रियाज को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको नीचे लाने के लिए। तो इन खुराक ये जो खुराकें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हैं, इनको बहुत कम कर दें। अगर तो छोड़ सकते हैं तो भी छोड़ दें, क्योंकि इनकी जिस्म को आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, ये जो फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट। फिर दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलते हैं वेजिटेबल से, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं आपकी, गोभी है, मटर हैं, इस तरह की जो सब्जियां हैं, बैंगन वगैरह, ये सब जो है इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। तो आप जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेसिकली वो आप सब्जियों से लें, कभी कभार एक आध फ्रूट खा लें जो कम चीनी वाला है, और रोटी चावल जो है वो बिल्कुल कम कर दें। बंद कर सकते हैं तो बंद कर दें, एटलीस्ट उस वक्त तक जब तक कि आपकी लिवर की चर्बी जो है वो खत्म नहीं होती। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट्स कम करेंगे या कार्बोहाइड्रेट्स बंद करेंगे तो आपकी जिस्म जो है उसको एनर्जी बनाने के लिए आपके जो स्टोर्ड फैट्स हैं, जो आपकी कमर पे फैट है, जो आपकी जिस्म पे फैट है, तो उसको फिर आपका जिस्म ऑटोमेटिकली उस फैट को बर्न करना शुरू कर देता है। तो जब वो फैट बर्न होते हैं तो एनर्जी आपको वही मिलती है जो आप कार्बोहाइड्रेट से ले रहे होते हैं, लेकिन आपके फैट्स बर्न हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 2-3 महीने के अंदर अंदर आपके फैट्स बहुत ज़्यादा बर्न होंगे, मसल आपकी ठीक रहेंगी, आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आपके फैट्स बर्न होंगे और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और आप देखेंगे कि आपकी शुगर का लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। जब आपकी शुगर का लेवल कम होना शुरू हो जाए, और ये आप चेक करते रहें स्ट्रिप से, तो फिर आप जो है जो आप दवाएं ले रहे हैं उनको आप आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दें। अगर आप मेटफॉर्मन या ग्लूकोफेज या कोई और दवाई ले रहे हैं, 1000 मिलीग्राम की ले रहे हैं, उसको 500 कर दें। 500 की ले रहे हैं 2 दफ़ा, तो उसको 1 दफ़ा कर दें। अपने डॉक्टर से ज़रूर ये मशवरा कर लें।
लेकिन ग्लूकोफाज या मेटफॉर्मिन को छोड़ने का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी ब्लड शुगर डाइट से कंट्रोल हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी मेडिसिन को डिक्रीज करना शुरू कर दें और उस लेवल तक ले आएं कि जब आप लो कार्बोहाइड्रेट फूड खा रहे हैं तो आपकी शुगर खाने के 2 घंटे के बाद 130 से ऊपर ना जाए। अगर 130 से नीचे है और देखेंगे कि आपकी फास्टिंग शुगर जो है वो 100 से नीचे चली जाएगी, आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, कोई साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सफ़र में जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको जो शुगर है, शुगरी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ, उनसे बचें और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे रोटी, चावल, आलू वगैरह, इनसे बचें। तो इनसे बचेंगे तो आपकी जिस्म की शुगर कम प्रोड्यूस होगी, आपकी जिस्म की चर्बी पिघलेगी और आपका लिवर उसको पेंक्रियाज जो है, आपका जो लिवर और पेंक्रियाज है दोनों आपके इंसुलिन को मजीद सेंसिटिव कर देगा। तो आप देखेंगे कि 5-6 महीने के अंदर अंदर आप यूं हो जाएंगे जैसे कि आपको बिल्कुल शुगर थी ही नहीं। लेकिन एक बात जरूर ख्याल रखिएगा कि ये ठीक हो जाने के बाद आप अगर दोबारा शुरू करेंगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, मीठा, तो आप दोबारा वापस हाई शुगर पे चले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में है। तो जिन लोगों की फैमिली में ये प्रॉब्लम है, शुगर उनको है या प्री डायबिटिक हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो लो कार्ब लाइफस्टाइल को फॉलो करें। और ये बहुत सेटिस्फाइंग है। आप गोश्त खाएं, मछली खाएं, नट्स खाएं, आप एवोकाडो खाएं, आप ये सारी चीज़ें खाएं, सब्जियां खाएं, ग्रीन सब्जियां वगैरह खाएं, तो देखेंगे कि आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपकी जिस्म पे चर्बी भी नहीं रहेगी और आपकी शुगर आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, हत्ता कि आप दवाएं लेना भी बंद कर देंगे। और जो टाइप 2 डायबिटिक है, अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं तो लो कार्ब पे जाते हुए उनको इंसुलिन की मिकदार भी कम करनी पड़ेगी आहिस्ता आहिस्ता। तो वो आप चेक करते रहें तो आपको अंदाजा लगेगा। ये तजर्बे जो हैं लो कार्ब वाले, इनके लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्ट्रिप्स हों। आपने शुगर खाने के 2 घंटे बाद रोज़ाना चेक करें, हर खाने के बाद महीना 2 महीने चेक करते रहें और उसके मुताबिक अपनी इंसुलिन भी लो करते रहें। तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपकी शुगर अभी नई है, अगर आपके पेंक्रियाज के सेल काम कर रहे हैं, तो 2-3 महीने के अंदर अंदर आपकी इंसुलिन भी छूट जाएगी, आपकी दवाएं भी छूट जाएंगी और आप इसको फॉलो करते रहें। आप मसल भी बिल्ड कर सकेंगे, आपकी जिस्म के हार्मोन भी ठीक हो जाएंगे। अपने टेस्ट कराएंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो आपकी जिस्म की हैं, जो भी मार्कर्स हैं आपके हेल्थ के, सारे ठीक हो जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 80% आपकी जो शुगर है वो सिर्फ खुराक चेंज करने से आप दवाएं छोड़ सकते हैं। और बाकी अगर आप खाने के घंटे बाद वॉक करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, तो उससे मजीद जो 10-20% है वो भी आपकी हेल्प हो जाएगी शुगर डिक्रीज करने में और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने में। इस बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें आगे लोगों को जिनको डायबिटीज़ है या जिनकी फैमिली में है, और देखेंगे आप इंशाल्लाह इस चीज़ को फॉलो करने के रिजल्ट्स के 3 से 6 महीने बाद आपकी मेडिसिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आपकी इंसुलिन या तो बहुत थोड़ी हो जाएगी या इंसुलिन जो आप लेते हैं उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और ये काफ़ी सारे लोगों को मैंने बताया पिछले 6 महीने, साल में, और लोगों ने ये तजर्बे किए और बहुत सारे लोग इंसुलिन के बगैर अब शुगर कंट्रोल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बिल्कुल दवाएं भी नहीं ले रहे। तो एनीवे अगर आपको क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। सब्सक्राइब करें चैनल को, आगे इसको फैलाएं लोगों को ताकि लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम।